यार इजरायलीज का क्या बोलो, एकदम ही साइकोपैथ लोग हैं ये लोग। एक वॉर खत्म हुई नहीं, ठीक है, एक वॉर क्या, ये तो कितनी सारी जंग छेड़ चुके हैं कि दूसरी या और वॉर्स की तैयारी शुरू। ये देखो पूरा माहौल बनाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया पे, खासतौर पे अमेरिकन मीडिया पे, कि कैसे टर्की के खिलाफ अब नेक्स्ट वॉर चालू करनी है। Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece, another NATO country, and he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, his number two, said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, said he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum. ये जरूर ध्यान रखना, ये मुस्लिम ब्रदरहुड ना आगे बहुत सारे इंटरव्यूज में इसके सुनने को मिलेगा। अब ये इतना भी कह रहा है कि टर्की रिस्टोर कराना चाहता है, ऑटोमन एम्पायर अपनी रिस्टोर कराना चाहता है। सुन लो। I mean, they openly say that they want to restore the Ottoman Empire. The Ottoman Empire not only included Turkey, it included many other countries, included Syria, it included pieces of Jordan, included all of present-day Israel, included some Gulf countries. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, or smiles to the President of the United States when it's necessary, when you give them that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that. इतना भी कह रहा है कि टर्की हमास को फाइनेंस करता है। They're also financing Hamas, and you guys know that. So they Yes, might have helped, but they're financing Hamas, right? They finance Hamas, they harbor Hamas, they roll out the red carpet for Hamas. They're in fact supporting the bad guys. And they didn't lift a finger to help you in Iran. We did. We're the model ally that fought next to your great soldiers. यार देखो, वैसे ये तो हम क्लियरली जानते हैं, कितने मीडिया में रिपोर्टेड है, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि हमास को किसने फाइनेंस किया था। खुद नेतन्याहू ने हमास को फाइनेंस किया था। एंड ये तो हमने एक आध इंटरव्यू दिखाया है आपको, ये स्प्री ऑफ इंटरव्यूज है, इतने सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं नेतन्याहू और उसके मिनिस्टर्स। एंड इन सब इंटरव्यूज में एक ही चीज हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। माहौल एकदम वैसे ही बना रहा है नेतन्याहू जैसा उसने ईरान के खिलाफ बनाया था। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly. और यहाँ पे इराक के खिलाफ किया था। There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. And make no mistake about it, if and once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. और अब वही सेम चीज टर्की के खिलाफ हो रही है। पर यार सवाल तो ये उठता है कि टर्की जो कि खुद ही एक नेटो मेंबर है, उसके अगेंस्ट क्यों इजराइल वॉर लड़ना चाहेगा? एट द कोर ऑफ इट तो अगर आप पूछो कि भाई अगर शॉर्ट में बताओ यार, तो भाई जवाब है ग्रेटर इजराइल। एंड क्योंकि इजराइल बनना चाहता है हेजेमोन ऑफ द रीजन। देखो, इजराइल का कोई प्लान नहीं है कि वो विड्रॉ करे गाजा से, वेस्ट बैंक को तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके हैं, या विड्रॉ करे लेबनान से या सीरिया से। एंड इनके प्लान्स ऑलरेडी बन गए हैं। इनफैक्ट जो डील भी इन्होंने साइन की है लेबनीज गवर्नमेंट के साथ, वो यही है कि ये लोग एनेक्स कर लेंगे लेबनान को। अब सबसे बड़ी वजह क्या है टर्की के खिलाफ जंग छेड़ने की? वो है जियोग्राफी। अगर आप इस मैप को देखो तो आपको ये दिखेगा कि लेबनान है, सीरिया है, अकेला देश जो सेपरेट करता है टर्की को और इजराइल को, वो है सीरिया। जब से असाद की रजीम गिरी थी, जिसको गिराने में बाय द वे बहुत बड़ा हाथ था नेतन्याहू का, इजराइल का, ये लोग तब से लॉबी कर रहे थे कि भाई सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ो, जंग छेड़ो। एंड असाद को हटाने के बाद कौन आ गया? ये अल-जुलानी आ गया। ये बंदा हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी बड़ी बड़ी आप रिकग्नाइज करते हो, चाहे वो अल-कायदा हो, अल-नुसरा हो, इन सब में इन्वॉल्व था ये अल-जुलानी। एंड जब से असाद गया तब से इजराइल ने गोलन हाइट्स को भी कब्जा लिया। उन्होंने कहा हम एक बफर जोन बनाएंगे, ये इनका फेवरेट है, बफर जोन बनाएंगे। जैसे लेबनान में अभी बफर जोन बनाना चाहते हैं, ऐसे ही ये कह रहे हैं कि गोलन हाइट्स को भी हम कब्जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी बफर जोन बनाएंगे।
एंड साउथ सीरिया की टेरिटरी को भी कब्जाएंगे, वहां पे भी एक बफर जोन बनाएंगे। इतना ही नहीं, इजराइल ने बहुत भारी भरकम स्ट्राइक्स करके 480 टाइम्स सीरिया के अगेंस्ट स्ट्राइक किया। मेजर जितने भी इक्विपमेंट थे, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का इक्विपमेंट हो, उस सबको धराशायी कर दिया था इन्होंने। तो भाई अगर आप ग्रेटर इजराइल का मैप देखो, ठीक है, इसमें लेबनान भी आता है, सीरिया भी आता है, सीरिया के बाद हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ टर्की भी आए। तो अब इनको क्या लगता है कि भाई देखो, सीरिया को हमको कब्जाना है, पर वो इतने आसानी से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम सीरिया को कब्जाने जाएंगे तो उसके ऊपर कौन बैठा है? टर्की बैठा है। एंड अगर हम सीरिया कब्जाना चाहते हैं तो बिना टर्की से लड़ाई करे बिना तो वो हो ही नहीं सकता। तो टर्की को भी लगता है कि भाई हमको इजराइल से ना बच के रहना है, तो वो सीरिया के साथ एक अग्रीमेंट करना चाहते थे, जिसमें वो बोल रहे थे सीरियंस को कि देखो, आपके यहाँ पे जितने बेसिस हैं या कुछ पर्टिकुलर बेसिस के लिए हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, वहां पे हम अपने बेसिस बना लेते हैं। एंड इजराइल को लगता है कि अगर ये लोग यहाँ पे बेसिस बना लेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बहुत सारे टर्किश एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी बिटवीन टर्की एंड इजराइल होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो होगी सीरियन फ्रंट पे, लैंड पर एंड एयर पर।